So we have started with this topic Mughal Empire. Okay, we have discussed some of the points. So first of all, raise your hand, the student who will let me know that which point we have discussed till now. Yes. Yes, anyone? Raise your hand, beta. Yes, good, Rishita. Very good. Yes, please let me know, beta. Yes, ma'am. We have done till Mansabdars and Jagirdars. Okay. And before Mansabdar and Zagidas, what we have discussed? Ma'am, we have discussed the Mughal traditions of succession and Mughals' relation with other rulers who were Mughals and Mughal military campaigns. Yes, very good. So in Mansabdar, what we have discussed? In Mansabdar and Zagirdars, what we have discussed? Yes, Bhavya? Yes. Ma'am, we have discussed till Zat. Yes, about Zat. What was Zat? Yes, ma'am, Zat were the ranks determined by the numerical value. Z were numerical value, है ना? Numerical value थी और वो numerical value किस चीज को बताती थी? The rank and salary. ठीक है? Yes. Good, Bhavya. Yes, Suhana. Explain this only. Mansabdar and Zagidas, what we have discussed in it. Sardar is a person who has a position given by Mughals. King gives salary to him. Mansabdar has a rank given by a king. Yes, so Mansabdar means a rank, and the rank and salary they were determined in that. पूरा grading system था मुगल एम्पायर में, और उस grading system में जो भी उनको रैंक या सैलरी दी जाती थी उसको मेजर किस में करते थे? Z. ठीक है? अगर किसी एक पर्सन का Z ज्यादा है तो मींस उसकी रैंक और सैलरी ज्यादा है. ठीक है? Z किस में था? न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5000 हो गया कि अगर किसी का रैंक 5000 है, किसी का रैंक 1000 है, तो हम क्या बोलेंगे? उसका Z 1000 है, उसका Z 5000 है, तो इस मीन उसका रैंक भी ज्यादा है, जिसका 1000 है उसका रैंक और सैलरी कम है. ठीक है? Z वाज द न्यूमेरिकल वैल्यू. और हमने क्या डिस्कस किया था इसमें? इन मनसबदार एंड जागीरदार्स. Yes. Rishita has given the answer. Bhavya has given the answer. Yes, beta. Any other student? Yes. Any other? Hanji. Yes, bache, you are writing in chat box, but raise your hand also to answer. Okay. Yes, Rishita. Please let me know so that we can move further. Yes, ma'am. Mansabdars received their salaries as revenue assignments called Jagirs, Yes. So, which were somewhat like Iktas. okay. जैसे हमने इक्तादार्स में किया था, एज इक्ता वाज गिवन टू इक्तादार्स, उसी तरह इनको सैलरी किस में दी जाती थी? द रेवेन्यू असाइनमेंट. तो रेवेन्यू असाइनमेंट कहाँ से आती थी? जागीर. ठीक है? उनको जागीर दे दी जाती थी, जहां के जागीर से दे विल कलेक्ट देयर रेवेन्यूज. ठीक है? तो वहां से वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे. क्लियर? यस. व्हाट एल्स वी हैव डिस्कस्ड? यस रिशिता. हाँ जी बेटा. हाँ जी रिशिता, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. ओके भव्या. यस मैम, हमने यहाँ तक की बस किया था, आपने कहा था इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. Okay. So we have discussed कि Mansabdar means a Mansab rank, and in Mughal Empire there was proper grading system, and that was given to these Mansabdar means that is a numerical value in which these rank and salary they were measured. ठीक है? And who was having higher that means he is having higher value कि उसकी राजा के दरबार में उतनी ज्यादा वैल्यू है. Then मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हमने बच्चे ये डिस्कस किया था. ठीक है? इसको हमने कंटिन्यू करना है. तो उनको सैलरी दी जाती थी इन द फॉर्म ऑफ जागीर. दे कलेक्टेड रेवेन्यू.
ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वो जहाँ पे उनकी जागीर मिली है, जो उनको जैसे कि इक्ता मिली थी, तो जरूरी नहीं कि जहाँ पे इक्ता मिली है सेम वहीं पे वो क्या करेंगे, दे विल रिजाइड ऑल्सो, कि वहां पे वो रहेंगे भी। ठीक है, जैसे कि इक्तादार क्या होता था, अपनी इक्ता में रहते थे, बट दीज मनसबदार जरूरी नहीं है कि ये उनकी जागीर है तो वो यहीं पे रहते हो सकता है कि दे आर लिविंग इन समवेयर एल्स एंड दे हैव, उनके यहाँ पे सर्वेंट्स है जो कि यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके फिर उनको वापस दे रहे हैं। ठीक है, सो दे हैव केप्ट देयर सर्वेंट्स हु आर कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू इन द फॉर दीज मनसबदार, तो उन मनसबदार के लिए वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक डिफरेंस है इक्तादार और मनसबदार में। ठीक है, तो अब यह हो गया कि उनकी सैलरीज होगी, कैसे मेजर होती थी जागीर में। देन देयर मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, तो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दे हैव टू कीप अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सवार। सवार मींस कैवेलरी मैन, कैवेलरी मैन जैसे कि जो फोर्सेस के ऊपर हमारी आर्मी होती है, तो उन सवार का उनको एक रिक्वायर्ड नंबर रखना पड़ता था। ठीक है, दे हैव टू कीप रिक्वायर्ड सवार की, जैसे कि इक्तादार को उतने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स रखने पड़ते थे जितने सुल्तान ने बोले। ठीक है, सेम वे दे हैव टू कीप अ रिक्वायर्ड सवार या कैवेलरी मैन। और फिर वो मनसबदार उन्हीं सवार को रिव्यू करने के लिए लेके जाता था, उनको रजिस्टर करवाता था, हॉर्सेस को ब्रांडेड करवाता था, फिर सबकी उनकी सैलरी जो थी वो मनसबदार को मिलती थी। ठीक है, कि इन सबको जो उसने सैलरी पे करनी है वो उसको दी जाती थी। और इसी जो प्रॉपर उसको सैलरीज मिली है, रेवेन्यू असाइनमेंट, जागीर, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए अकबर के टाइम पीरियड में इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था कि वेदर द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मनसबदार, सो दे आर इक्वल टू द सैलरीज, कि whatever revenue is being collected from the jagir that is given to these mansabdar, so that revenue collected is equal to the salary that we have decided for this mansabdar, कि जो हमने इस मनसबदार के लिए सैलरी डिसाइड की है तो रेवेन्यू कलेक्शन उसके इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि वो रेवेन्यू कलेक्शन क्या बनेगी, उसकी सैलरी, क्योंकि उसको जागीर वही मिली है। ठीक है, तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था, प्रॉपर असेसमेंट की जाती थी। और अकबर के टाइम पीरियड में ऐसी कोई भी हम कह सकते हैं कि केस नहीं था जिसमें कि रेवेन्यू कलेक्शन कम हुई हो या सैलरी ज्यादा थी, या उसकी सैलरी कम है, उसको रेवेन्यू ज्यादा उसने इकट्ठा कर लिया। ठीक है, कि उसकी सैलरी तो डिसाइड की है सिर्फ 5000, उसने रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया 10000। तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था कि व्हाटएवर रेवेन्यू इज बीइंग कलेक्टेड, so that is roughly equal to the salary, वो उसके इक्वल हो। ठीक है, so now moving to the next point of this topic, that is zabt and zamindars। ठीक है, so what is this zabt and zamindars? So zamindars word earlier we have also discussed ki who was having a very large area of land। ठीक है, लैंड ऑनर्स, जिनके पास काफी लैंड होती थी, जमीन। जमींदार मींस जिनके पास काफी जमीन है। ठीक है, जमींदार तो हिंदी का ही वर्ड है। तो जमींदार यहाँ पे कौन होते थे इन दिस मुगल एम्पायर? तो मेन, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि पीजेंट्स हैं, हमारे पास पीजेंट्स हैं, तो उन्हीं पीजेंट से हमें क्या आएगी, वी विल गेट रेवेन्यू। इन्हीं पीजेंट से ही हमें रेवेन्यू मिलेगा। जो रेवेन्यू है दैट वी विल गेट फ्रॉम दीज पीजेंट्स ओनली। तो जो राजा की इनकम है, तो दैट रेवेन्यू दैट विल गो टू द किंग। वो रेवेन्यू वो किसके पास जा रहा है, किंग के पास जा रहा है। सो मेन जो सोर्स ऑफ इनकम था इन मुगल एम्परर्स का, सो दैट वाज रेवेन्यू। और वो रेवेन्यू क्या था, टैक्स ऑन दीज पीजेंट्स, इन पीजेंट्स के ऊपर जो टैक्स था। और मोस्ट जो ये पीजेंट्स होते थे ये टैक्स डायरेक्टली किंग को पे नहीं करते थे। ठीक है, हर एक लोकल एरिया में लोकल कुछ लैंडलॉर्ड्स होते थे, जो कि लोकल चीफ हम कह सकते हैं, कि हर एक एरिया का एक चीफ होता था, तो उस चीफ को वो टैक्स पे करते थे। क्योंकि ये मुगल एम्परर्स तो बाद में आए ना, जैसे पहले भी क्या कि मुगल जो थे वो जागीर वापस कर देते थे। ठीक है, एम्परर्स को वापस कर देते थे उनकी जागीर, अगर वो हार भी जाते थे फिर भी उनकी जागीर उनको वापस कर देते थे। ठीक है, तो अब ये किंग्स जो हैं ये रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, ज्यादा मेन सोर्स ऑफ इनकम ही ये उनका रेवेन्यू है। तो इसलिए अब ये जो पीजेंट्स हैं ये लैंड रेवेन्यू दे रहे हैं अपने लोकल चीफ्स को। ठीक है, जो भी वहां पे उनका
लोकल चीफ या हेडमैन है, तो अगर या तो विलेज का हेडमैन है उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से ये सभी इनको लैंड रेवेन्यू ऑलरेडी दे रहे हैं, ठीक है। तो किंग ने उनको ही आगे अपॉइंट कर दिया विलेज हेडमैन को फॉर कलेक्टिंग दीज लैंड रेवेन्यू, ठीक है। इन मोस्ट प्लेसेस दीज पीजेंट पे टैक्सेस थ्रू रूरल एलिट्स, ये इनको टैक्स पे कर रहे हैं, फिर ये आगे ही किंग को इन्होंने पे करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो दैट इज, वो कौन होता था, या तो विलेज का हेडमैन, ठीक है, विलेज का हेडमैन भी हो सकता है, या लोकल चीफ या विलेज हेडमैन। तो इन सब के लिए, अब ये लोकल चीफ भी हो सकता है या विलेज हेडमैन भी हो सकता है, ठीक है। अब इन सब के लिए एक ही टर्म यूज कर ली, वो क्या है, जमींदार, ठीक है। जो लोकल चीफ है या विलेज हेडमैन है, उन सब के लिए हमने एक क्या चीज यूज कर ली, जमींदार। और ये जमींदार क्या है, इंटरमीडियरीज, ठीक है। इनके बीच में, पीजेंट्स और किंग के बीच में क्या है, ये इंटरमीडियरीज, क्योंकि ये टैक्स कलेक्ट करके किसको दे रहे हैं, किंग को दे रहे हैं, है ना। क्योंकि पीजेंट्स जो हैं वो रेवेन्यू डायरेक्टली किंग को नहीं दे रहे, ठीक है। पीजेंट्स डायरेक्टली किंग को नहीं दे रहे, वो किसको दे रहे हैं, दे आर गिविंग टू विलेज हेडमैन, लोकल चीफ, एंड देन दे आर फर्दर गिविंग टू मुगल रूलर। तो इसका मतलब ये बीच में क्या है, इंटरमीडियरीज, जो बीच में उनके मिडल मैन है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर गिविंग। यस yes Manharpreet, you can write your queries in chat box. हाँ जी, you have raised your hand मनहर बेटा। हाँ जी, so these zamindars they are intermediaries, ठीक है। so ये intermediaries या विलेज हेडमैन भी हो सकते हैं या लोकल चीफ भी, ठीक है। so इसी में हमें एक रेफरेंस मिलता है, अकबर का जो रेवेन्यू मिनिस्टर था, जो पूरी रेवेन्यू कलेक्शन की असेसमेंट करता था, सो दैट रेवेन्यू मिनिस्टर, उसने एक प्रॉपर सर्वे किया था पूरी क्रॉप फील्ड्स का, एरियाज का, पूरे 10 ईयर के टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। फॉर 10 ईयर पीरियड ऑफ टाइम ही हैज सर्वेड, एंड फ्रॉम 1570 टू 1580, 1570 से लेके 1580 तक उसने पूरा रिकॉर्ड तैयार किया, दैट व्हाट वाज द क्रॉप यील्ड, कि कितनी फसल रही है, कितने उनके प्राइजेस रहे हैं, ठीक है, कितना एरिया कल्टीवेटेड हुआ, ये प्रॉपर सारा उसने किया। फिर उसने सारे इस डाटा की, जो भी उसने क्रॉप यील्ड कितना था, ठीक है, उस एरिया में क्रॉप यील्ड कितना था, उसका प्राइस कितना था, और फिर कितना एरिया कल्टीवेटेड हो रहा था, ये सारा उसने सर्वे किया, पूरा 10 इयर्स का उसने रिकॉर्ड जो था वो मेंटेन किया, ठीक है। और उस 10 ईयर के रिकॉर्ड के बाद उसने जो था वो टैक्स जो था फिक्स किया गया, ठीक है। ये पूरा सर्वे करने के बाद उन्होंने क्या किया, टैक्स मींस जो भी लैंड रेवेन्यू था वो फिक्स किया गया, ठीक है। ये सारा सर्वे करने के बाद, ये सर्वे किया उन्होंने, सर्वे ऑफ 10 इयर्स 1570 टू 1580, पूरा सर्वे करने के बाद उन्होंने टैक्स फिक्स किया। एंड दिस जो टैक्स था, ये जो पूरा रेवेन्यू सिस्टम था, ये रेवेन्यू सिस्टम में क्या किया गया था, ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स, ठीक है। जैसे हम पहले एक विलेज हेडमैन है, ठीक है, राजा के अंडर एक प्रोविंस है, अभी हमने सेंट्रल प्रोविंसेस हमने किए थे, कल मैप में देखे थे कि विच वर द वेरियस प्रोविंसेस, कि प्रोविंसेस कौन से हैं, ठीक है, प्रोविंसेस कौन से थे मुगल एम्पायर के टाइम में, ठीक है। जैसे अलग अलग मथुरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, पंजाब, ये सारे क्या थे, प्रोविंसेस थे, ठीक है। तो हर एक प्रोविंस को, ठीक है, एवरी प्रोविंस, हर एक प्रोविंस को क्या किया गया था, अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, कि ये एरिया, ये एरिया, ये अलग अलग एरियाज, ठीक है, और ये क्या हो गया, इनके रेवेन्यू सर्कल्स, ठीक है। मतलब
एक प्रोविंस को, ये पूरा एक प्रोविंस है, इसको अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स, ठीक है, बहुत सारे ये मैंने बनाए नहीं, ठीक है, अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो जरूरी नहीं है सर्कल हो, ये कोई और शेप भी हो सकती है, ठीक है। प्रोविंस मतलब स्टेट, जैसे आज हमारा स्टेट है ना, आज हमारा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, ये अलग अलग स्टेट हैं। तो उस टाइम मुगल एम्पायर के टाइम में स्टेट को क्या कहा जाता था? प्रोविंस। जैसे हमने मैप में भी बच्चे डिस्कस किया था, सी दिस, एज वी हैव डिस्कस्ड इन दिस मैप, ठीक है ना। ये डिफरेंट क्या है? एरियाज हैं, ये डिफरेंट प्रोविंसेस हैं जो मुगल एम्परर्स के अंडर थे, ठीक है। सपोज सिर्फ हमने ये लाहौर के एरिया को एक प्रोविंस बना दिया और इसमें अलग अलग हमने रेवेन्यू जो सर्कल्स थे वो डिसाइड कर दिए कि यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो इस तरह ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रेवेन्यू सर्कल्स और with its own schedule of revenue rates for individual crops, कि अलग अलग क्रॉप की जो अलग अलग क्रॉप है, किस क्रॉप पे कितना रेवेन्यू लगेगा, किस क्रॉप पे कितना, ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स पे अलग अलग रेवेन्यू लगेगा, ठीक है। यस बच्चे, so this province was divided into different revenue circles, ठीक है, with this on schedule of revenue rates, अलग अलग revenue rates थे, ठीक है, अलग अलग उन्होंने क्रॉप्स के, अलग अलग क्रॉप्स के जो रेट्स हैं, रेवेन्यू रेट्स, वो अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है। ये पूरा सिस्टम बनाया है। तो ये जो पूरा सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का, so this revenue system was known as ज़ब्त, ठीक है। ये जो पूरा रेवेन्यू सिस्टम था, ये रेवेन्यू सिस्टम, ये पूरा सिस्टम बन गया ना। तो ये पूरा जो रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें कि जमींदार हैं और ये जब्त पूरा कलेक्ट किया जा रहा है, रेवेन्यू सर्वे किया गया है, सर्वे के बेस पे टैक्स फिक्स किया गया है और फिर रेवेन्यू सर्कल्स में ईच प्रोविंस को डिवाइड किया गया है, देन रेट्स हैज बीन डिवाइडेड ऑन वेरियस क्रॉप्स, सो दिस ऑल सिस्टम इज called as zabt, so this revenue system. Clear? This zamindars and zabt is clear to everyone? Yes, Akriti. Hanji, Akriti. Yes, bache, you have raised your hand. Hanji, Bhavya. मैं एक बात बताना, रेवेन्यू सर्कल क्या होता है? जैसे हमारा पंजाब है, ठीक है, आर पंजाब इज ए प्रोविंस, ठीक है, हमारा पंजाब एक प्रोविंस हो गया और उस पंजाब में हमने अलग अलग, जैसे जलंधर, कपूरथला, ठीक है, ये नकोदर, ये अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स बना दिए। वो सारे है तो पंजाब में ही ना, है तो पंजाब ही, तो वो क्या हो गया, वो अलग अलग रेवेन्यू सर्कल्स की, यहाँ से ये रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ से ये कलेक्ट करेगा, तो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी गई अलग अलग पर्सन, ठीक है। क्योंकि जो जागीरदार था वो खुद तो कलेक्ट करता नहीं था, उसने आगे सर्वेंट्स रखे होते थे कलेक्शन करने के लिए, प्रॉपर ग्रेड सिस्टम था, तो ये रेवेन्यू सिस्टम था। क्लियर? मैम वो पर्सन किंग ने अपॉइंट किए थे? यस, तो किंग ने, क्योंकि अभी किंग ने ही ये इंटरमीडियरीज को अपॉइंट कर दिया ना, ये इंटरमीडियरीज हैं किंग और पीजेंट्स के बीच में, ठीक है। ये जो विलेज हेडमैन या लोकल चीफ, इनको अपॉइंट कर दिया कि ये सिस्टम हमने बना दिया है, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अब आपने रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें देना है, ठीक है। तो ये उन्होंने सिस्टम बना दी। अब इसी में ऑल दीज केयरफुल अकाउंट्स वर प्रॉपरली मेंटेन्ड इन द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में सारा प्रॉपरली रिकॉर्ड जो था वो मेंटेन किया जाता था, ठीक है। लेटर ऑन ये जो जमींदार होते थे ये बहुत पावरफुल बन गए थे, ठीक है। तो जब लास्ट में जाके मुगल एम्परर्स के अगेंस्ट भी, जब मुगल एम्पायर, हम कह रहे हैं कि औरंगजेब के साथ वीक राजा आने शुरू हो गए थे औरंगजेब के बाद, तो उसके बाद ये जमींदार ने भी, क्योंकि ये भी काफी पावरफुल हो गए थे, तो इन्होंने भी, जमींदार ने भी गवर्नमेंट के खिलाफ जो था, गवर्नमेंट मतलब मुगल एम्पायर के खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये भी बहुत पावरफुल हो गए थे ये, ठीक है। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, उससे पहले हम डिस्कस करेंगे अकबर पॉलिसीज, ठीक है, कि अकबर की पॉलिसीज क्या थी। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा सभी को?
मनसबदार, देन जब्तन जमींदार, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा अकबर की जो पॉलिसीज हैं। अब अकबर की पॉलिसी, जैसे हमने पहले कहा कि अकबर क्या था, एक बहुत सेकुलर किंग था। उसका जो टाइम पीरियड था, रूलिंग पीरियड था, वो भी 49 इयर्स था। बहुत टाइम पर उसने रूल किया, ठीक है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था। अब उस अकबर की पॉलिसीज में जो सबसे पहले अकबर की पॉलिसीज हमें पता चलती हैं, वो पता चलती है हमें अबुल फजल की जो बुक उसने लिखी है, ठीक है। अकबर ने अपनी जैसे हम कहते हैं ना कि सुल्तान जो थे वो भी तारीख लिखवाते थे, इस तरह अकबर ने भी अपनी हिस्टोरियन जो था अबुल फजल था, उसका काफी फ्रेंड भी था, तो उसने उसको बोला कि आप हिस्ट्री लिखो मेरी, ठीक है। उसने उसकी 2 बुक्स लिखी, अकबरनामा और ऐन अकबरी, ठीक है। किसने लिखी? अबुल फजल ने, ठीक है। अबुल फजल ने 2 बुक्स लिखी, एक थी अकबरनामा और एक थी ऐन अकबरी, जिसमें कि उसने एक्सप्लेन किया है सारा ये उसकी कि अकबर की पॉलिसीज क्या थी, अकबर कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन करता था, ठीक है। तो ये सारा कुछ उसमें बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया गया है। क्लियर हो गया? ये अबुल फजल ने लिखी है, एक तो अकबरनामा थी और एक थी ऐन अकबरी। तो ये 2 बुक्स में, तो ये ऐन अकबरी लास्ट उसका वॉल्यूम था, जिसमें कि उस दोनों चीजों में उसने एक्सप्लेन किया है कि कैसे अबुल फजल ने लिखा है कि कैसे अकबर का पूरा एम्पायर प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट था, ठीक है। हमने अभी डिस्कस किया पहले कि प्रोविंसेस, अब उस प्रोविंस को क्या कहा जाता था? सूबा, ठीक है। अब इस प्रोविंस को क्या कहा जाता था? सूबा। और जो वहां पे हेड बनाया जाता था उसको कहा जाता था सूबेदार, ठीक है। तो इसमें हमें इस जो अबुल फजल की जो ये बुक्स हैं उसमें हमें ये प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन मिलती है कि हाउ दीज areas under the Akbar, how empire was distributed in between the provinces, and those provinces they were called subas, and the person who was governing that suba he was called subedar, उसको सूबेदार कहा जाता था। and he was carrying out the politically and military functions, ठीक है। सूबे में कौन है? सूबेदार। और वो सूबेदार क्या काम कर रहा है? मिलिट्री भी रख रहा है, मिलिट्री काम भी कर रहा है और साथ साथ में पॉलिटिकल काम भी कर रहा है, ठीक है। मतलब उसके भी आगे मिनिस्टर्स उस टाइम पे रखे जाते थे। और हर एक प्रोविंस में एक दीवान भी होता था, ठीक है। दीवान मींस फाइनेंशियल ऑफिसर, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम करता था। तो सूबेदार है, फिर वहां पे कौन है? दीवान भी है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड सारे, फाइनेंस मिनिस्टर हम कह सकते हैं, जैसे कि आजकल फाइनेंस मिनिस्टर है, तो फाइनेंशियल ऑफिसर था दीवान, ठीक है। उसके बाद पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो सूबेदार के और ऑफिसर्स भी होते थे, ये तो फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया ना। फिर सूबेदार ने और ज्यादा आगे ऑफिसर्स रखे होते थे, जैसे कि मिलिट्री, जो मिलिट्री का हेड होता था वो था बख्शी, ठीक है। मिलिट्री पे मास्टर जो मिलिट्री की सारी पेमेंट वगैरह करता था, बख्शी होता था। फिर जो रिलीजन से रिलेटेड सारे जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह कुछ भी डिसीजन लेने होते थे वो लेता था, तो वो होता था सद्र, ठीक है। कि किसको रिलीजियस पैट्रोनेज दी जाएगी, हेल्प दी जाएगी, या किसको हम कह सकते हैं कि ये रिलीजियस, किसी रिलीजन को कितना हमने दान देना है, तो जो भी पैट्रोनेज थी कि किसी कल्चरल कोई आर्टिस्ट है उसको हमने कैसे हेल्प देनी है जो राजा की तरफ से, तो ये सारा कुछ डिसाइड किया जाता था जो रिलीजियस और चैरिटेबल पैट्रोनेज के सदर इंचार्ज। बख्शी होता था जो मिलिट्री की पेमेंट करता था, ठीक है। आगे उनको सैलरीज वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी, उनका पूरा हिसाब किताब रखना, ठीक है, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करना, तो वो बख्शी होता था, मिलिट्री पे मास्टर, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री कमांडर, जो सारी मिलिट्री का कमांडर होता था, फौजदार, उसको कहा जाता था फौजदार। फिर जो टाउन पुलिस होती थी, ठीक है, जो शहर में पुलिस होती थी उसका कमांडर होता था, उसको कहा जाता था कोतवाल। तो मतलब फौजदार, कोतवाल, ठीक है, बख्शी, ये अलग अलग क्या थे?
मिनिस्टर होते थे जो कि इस सूबेदार की हेल्प करते थे। ठीक है, ये सारे क्या है, अलग अलग मिनिस्टर हैं जो इसकी हेल्प कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है, अकबर के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैरी ऑन होता था, प्रोविंस, प्रोविंस को सूबाज में, फिर आगे डिफरेंट मिनिस्टर्स। यस, सो देन अब इसी अकबर की पॉलिसीज में हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे उसकी रिलीजन के साथ, कि अकबर का रिलीजियस एटीट्यूड क्या था, अलग अलग जो रिलीजन्स थे उसके टाइम में उनके लिए उसका एटीट्यूड क्या था, वो उसका बिहेवियर कैसा था। ठीक है, बिफोर दैट एनी doubt from the points that we have discussed till now? Yes, please let me know, because this we will continue tomorrow, Akbar's policies, that how he consulted various religious leaders, अलग अलग religious leaders के साथ कैसे उसने consult किया, कैसे उसने अपना एक नया जो था सुलेकुल, ठीक है, सुलेकुल आइडिया उसको आया जो उसने स्टार्ट किया, वो क्या था, that we will discuss tomorrow. ठीक है, so if there is any doubt please let me know. Okay, so go through, I hope you have noted down the points, so go through all the points correctly from your book. ठीक है, and we will continue with tomorrow.